یہ اللہ چوک ہے اور یہاں سے آپ مڑیں گے پارکنگ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور آج آپ کو شگر ویلی میں تو آپ کو کمرہ دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، بیٹھ یہ بالکونی آپ کو دکھا دیتے ہیں کوج ریزورٹ۔ بالکل بھائی السلام۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور آج آپ کو شگر ویلی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کوج ریزورٹ کہ یہ کیسا ہے، اس کے ریٹ کیا ہے کمروں کا، اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کس قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ تو میرے ساتھ رہے، میں نے آپ کو آج دکھانا ہے کوج ریزورٹ۔ اگر آپ گلگت بلتستان کی ضلع شگر میں ایک پرسکون، خوبصورت اور لگژری قیام کے تلاش میں ہے تو کوج ریزورٹ شگر آپ کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے۔ دریائے شگر کے خوبصورت کنارے واقع یہ ریزورٹ دلکش قدرتی مناظر، پرسکون ماحول اور جدید سہولیات کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ تو آپ کو کمرہ دکھاتے ہیں، آ جائے تھوڑا سا۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ بہترین کمرہ ہے، اس کے جو سٹرکچر ہے کمرے کا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ انجوائے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جس جگہ پر اور جس سہولیات کے ساتھ یہ آپ کو سروس دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ہے۔ تو ساتھ رہے کمرہ آپ دیکھیں اور میں نے آپ کو مزید کچھ چیزیں بتانا ہے، دکھانا ہے، ساتھ رہے۔ یہ بالکونی ناظرین، اس وقت میں کوج ریزورٹ میں موجود ہوں۔ اس کے آپریشن مینیجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اپنا تعارف کریں سر اور یہ بتائیں کہ کس طرح مطلب یہاں پر بکنگ کی جاتی ہے، مہمانوں کو کیا سہولیات دی جاتی ہے، اور کس طرح مطلب اسکردو سے یا دیگر علاقوں سے جو سیاح آتے ہیں وہ یہاں کس طرح مطلب قیام کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہمارا ریزورٹ کوج ریزورٹ کے نام سے ہے، یہ شگر سکردو میں ہے۔ جو ہماری بکنگ ہوتی ہے وہ اوورال آن لائن ہی ہوتی ہے، ہماری ہیڈ آفس سے ہی ہوتی ہے سب کچھ۔ ہمارے پاس جسٹ مہمان ہی آتے ہیں۔ اچھا، بکنگ مطلب پہلے سے؟ جی ہمارا پہلے سے، کوئی مہینے پہلے، کوئی 2 مہینے پہلے، کوئی 4 مہینے پہلے، اس طرح کا سارے بکنگ آلریڈی بکنگ ہوتا ہے، اور وہ گیسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے گیسٹ کو انٹرٹین کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اس ٹائم 32 رومس ہیں، جن میں ریٹ کا آپ نے مجھ سے آف ریکارڈ آپ نے پوچھا تھا، ریٹ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آف سیزن میں تھوڑی سی ریٹ کم ہوتا ہے۔ باقی سہولیات یہاں پر کیا آپ لوگ دے رہے ہیں، کس قسم کے کمرے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک جو کچھ روم سے ہے کہ جہاں پر آپ کے ہمارے پاس روم کے اندر آپ کو جکوزی بھی مل جاتا ہے، چکوزی بھی ہے، اور باقی جو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیلکس اور سویٹ قسم کے دونوں روم آپ کے پاس موجود ہیں۔ سویٹ اور ڈیلکس بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹ کیا ہے؟
मतलब आप सीजन में क्या रेट है, सीजन में क्या रेट है, और अगर मतलब वॉकिंग पे आ जाए कोई बंदा यहाँ तो आपसे वो रूम लेना चाहते हैं तो क्या रेट है, किस तरह है? जी रेट तो फिक्स, आपको पता है कि रेट इस इलाके में वैसे भी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो सीजन है उसका रेट थोड़ी सी हाई होता है, ऑफ सीजन में रेट कम होता है, उसके बाद फिर कुछ लोग डिस्काउंट भी ले लेते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं, रेट रेट से कोई ठीक फिक्स है। नहीं होता। अगर आप मुनासिब समझते तो बता दे, सीजन का बता दे और आप सीजन का भी बता दे, अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं। खाने में क्या क्या दस्तियाब है? जी खाने में हमारे पास जो भी आप हमारा मेन्यू भी मैं आपको चेक करा दूंगा। खाने में तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऐसे तो नाम वो तो रिवायती लेके खाने नहीं है कि देता। नहीं यहाँ जी की जी हमारे पास रिवायती जो लोकल जो डिश है? डिशेस हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास हर किस्म का अमेरिकन स्टेक भी हमारे पास मिल जाता है, हर किस्म के खाने। और खाना जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन में, मैं बता रहा हूँ कि पूरे रीजन में सबसे बेस्ट है कोच रिजोर्ट का खाना, सबसे है। अच्छा है। और जो भी कस्टमर हमारे आते हैं हमारे खाने से जो तवंदुज होते हैं वो बड़ा अच्छा ये भी खुश बताइए appreciate कि करते हैं। ट्रांसपोर्ट का क्या इंतजाम है? ट्रांसपोर्ट का ये होता है कि सर हमारी जो पिक एंड ड्रॉप वैसे तो नहीं होता, लेकिन एक शटल सर्विस हमने रखा हुआ है। अगर यहाँ से एयरपोर्ट का है तो वो 2000 पर हेड के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। ठीक, आपको पता है कि यहाँ से एयरपोर्ट तक करीबन करीब 40 से 45 मिनट्स लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम पर हेड के हिसाब से 2000 चार्ज करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो चाहते हैं कि उनका अपने अपना गाड़ी हो, गाड़ी हो, और वो चाहते हैं कि भाई उनके लिए प्राइवेट कार या प्राडो किया जाए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ पर मतलब मैं आपको यही आसान अल्फाज में यही समझा देता हूँ कि जंगल में मंगल है, यानी इतनी दूर अपदादा इलाके में आपको बेहतरीन सर्विसेज यहाँ पर फराहम की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस किस्म की सहूलियात से लुत्फानंदोज होना चाहते हो और ये खूबसूरत वैली देखना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए हाजिर है। कोच रिजॉर्ट में आरामदा और जदीद तर्ज के कमरे, मयारी खाने, फैमिली फ्रेंडली माहौल और मेहमान नवाजी का ख़ास अहतमाम किया गया है। अगर आप स्कर्दू, शिगर पोर्ट, ब्लाइंड लेक, सर्द सहरा, दिगर सयाहती मकामात के सैर का इरादा रखते हैं तो ये रिजॉर्ट आपके क़याम के लिए एक बेहतरीन बेस कैंप साबित हो सकता है। ये बेहतरीन यानी दरिया के किनारे शाम के वक़्त अगर आप बैठ जाते हैं तो क्या ही बात है। यहाँ पर उन्होंने सेफ्टी भी बेहतरीन किए हैं। हाँ, ये सयाहों के लिए, गेस्ट के लिए ये खुसूसी सर्विस भी मौजूद है, चूँकि ये बहुत बड़े एरिया पर वाक़या है। तो ऊपर टॉप से इस रिजॉर्ट का मंज़र बहुत ही ज़्यादा शानदार। अगर आप स्कर्दू आते हैं या बायर आते हैं या बाई रोड आते हैं, KKH के ज़रिए आते हैं या नारायण कागान वाली बाबूसर वाली साइड से आते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचना मतलब मुश्किल है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको फिर ये छोटे छोटे पॉइंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। यानी शिगर वैली आपने ज़रूर जाना है, वहाँ पर क्या है। इस तरह हम यहाँ शिगर वैली जाते हुए रास्ते में हम यहाँ रुके तो आप दरिया का मंज़र देखें, कितना खूबसूरत मंज़र है। बीच में जो है ना वो दरिया, फिर वैली है, पूरा दरख्त, गांव देहात, बर्फ़ से ढके पहाड़। इस तरफ स्कर्दू वाली साइड पे अगर आप इनको दिखाएं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारे हैं। तो थोड़ा सा आप ये ज़रूर करें कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसके लिए आपको ज़रूर जो है ना वो जाना चाहिए, न कि आपको इसको स्किप कर दें। और बड़े बड़े जो मतलब पॉइंट है, शंग्रीला हो गया, सोक वैली हो गया, और इस तरह बड़े बड़े जो पॉइंट है लोग ज़्यादातर वही जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब भी आए तो आप थोड़ा सा टाइम देकर आप जो है ना एंजॉय करेंगे। सड़क बेहतरीन है, कोई इशू इसमें नहीं है, तंग ज़रूर है लेकिन इस ट्रैफिक के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा मतलब सड़क है। इस रिज़ॉर्ट के बिल्कुल करीब ब्लाइंड लेक भी मौजूद है जो आप वहां जा सकते हैं और नज़दीक ही है।
غټه افشار چې دغه کوم ځای الله ویډیو ویډیو کې دنیا کا دوسرا بڑا افشار شیر اور افشار میں فرق یہ افشاری شیر تھی شیر نہیں